قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ۔ جی ناظرین، پروگرام شہر شہر گلی گلی میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین نقیبی۔ ناظرین، صوبہ پنجاب کے دیہی و شہری علاقوں میں کل 5203 کچی آبادیاں ہیں۔ اب تک کتنے مکینوں کو حقوق کے ملکیت کی رجسٹریاں مل چکی ہیں اور کتنے لوگ ابھی بھی اس سے محروم ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب فیڈریشن کچی آبادیز پنجاب کے صوبائی صدر حاجی ظفر اقبال جتالہ صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس کاوش کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سن 1970 سے ہم کچی آبادیوں کے کام کر رہے ہیں۔ یہ کافی مراحل ہم راستے میں آئے ہمارے، اور جب بھٹو صاحب نے روٹی کپڑے کے مکان کا نعرہ لگایا تو اس وقت کچی آبادیوں کو بھی کچھ مالکانہ حقوق ملنے کا آسرا ہو گیا ہمیں، اور ہم نے اس کا ساتھ دے دیا۔ اور اس کے بعد لیکن انہوں نے قانون ایسا کوئی نہ بنایا جس کی وجہ سے کوئی مالکانہ حقوق مل سکے۔ سروے وغیرہ تو کرا دیا لیکن مالکانہ حقوق کوئی نہ ملے۔ جب 78 میں مارشاء اللہ کا دور آیا جنرل ضیاء کا، تو اس وقت پھر انہوں نے مارشاء اللہ ایکٹ B-22 کے تحت انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو کچی آبادیاں 1 جنوری 1978 سے پہلے 100 گھروں پر مشتمل ہیں ان کو کچی آبادی تسلیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے سروے وغیرہ شروع ہوئے۔ سروے ہونے کے بعد جب ہم کچی آبادیوں کے سارے مکمل کر بیٹھے سروے، تو ہمیں پتہ لگا کہ بہت ساری کچی آبادیاں ایسی ہیں جو کہ 95 گھر یا 90 گھر یا 98 گھر ہیں، وہ کچی آبادی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، تو وہ سلسلے میں مسئلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد جب 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر سے آ رہی تھیں، تو انہوں نے ہمیں جنیجو دور تھا اس وقت، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کچی آبادی کے لوگوں کو روکیں کہ بھئی یہ ان کے استقبال کے لیے نہ جائیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، یہ پورے کر دیں تو ہم نہیں جائیں گے، کچی آبادیوں کو روک لیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ایک جلسہ رکھیں، ہم وہاں اعلان کریں گے۔ تو انہوں نے پھر 7 اپریل 1986 کو دہلی دروازہ جو موچی گیٹ کے گراؤنڈ ہے وہاں انہوں نے جلسہ رکھا۔ 200 بس دی ہمیں، ہم کچی آبادیوں کو لوگوں کو لے کر گئے، جلسہ کرایا، ہماری تقریریں بھی ہوئیں۔ لاہور کے صدر رانا عبدالستار مرحوم ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کی بھی تقریر ہوئی۔ صوفی عبدالمجید صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی بھی تقریر ہوئی، میری بھی ہوئی۔ اور پھر وہاں ہمارا مطالبہ انہوں نے مانا کہ 23 مارچ 1985 کی ڈیٹ کر دی انہوں نے، اور 100 گھر کی جگہ انہوں نے 40 گھر کر دیے، اور 50 کروڑ روپیہ انہوں نے کچی آبادیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں دیا۔ ہمیں کیا دینا تھا، لوکل گورنمنٹ کو دیا، اور انہوں نے ہماری کچی آبادیوں کو ڈیولپمنٹ کچھ کافی کی سارے پنجاب میں۔ تو اس طرح وہ اب تک مالکانہ کو جو ہے نا وہ چلتے رہے۔ تو تقریباً ٹوٹل پنجاب میں کچی آبادیاں جو ہیں نا وہ ہیں 5203، اور اس میں سے 4299 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق مل گئے ہیں۔ اور یہ جو مالکانہ حقوق ملے ہیں یہ چودھری پرویز علائی کی حکومت میں 2004 سے لے کر 8 تک یہ رجسٹریاں ہوئی ہیں ان کی۔ اس میں بھی بڑا مسئلے آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر میرے کہنے کے اوپر، فیڈریشن کے کہنے کے اوپر، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں عبدالعلیم خان IT منسٹر تھے، ان کو ممبر لیا MPA کی طرف سے، اور میاں عامر محمود ناظم تھے لاہور کے، ان کو ممبر لیا ناظموں کی طرف سے، اور پبلک کی طرف کچی آبادیوں کی طرف سے مجھے ممبر لیا، اور 3 ممبر ہم کمیٹی میں شامل ہوئے، اور چیئرمین جو تھے نا وہ پرویز علائی صاحب۔ جو قید میں تھے
सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे। जी जिताला साहब, आपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को सराहा। अगर हम बात करें तो कच्ची आबादी के जो मुकीम हैं उनकी जगहों पर बेशुमार लोगों ने कब्ज़े भी जमा रखे हैं। किस दौर में ऐसा हुआ और कौन लोग हैं जो इन ज़मीनों पर काबिज़ हैं? ये जो उनके दौर में जो मालकाना हकूक़ हुए, उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, उन्होंने ये सारे कानून ख़त्म करके तरामीम करके उन्होंने 40 घरों की बजाय 4 घर गाँव में देहात में कर दिए और शहरों में 10 घर कर दिए। जब ये उन्होंने कर दिए और उन्होंने गांव में देहात में जितने 4 घर किए थे और उनको उन्होंने 2 कनाल तक उन्होंने कब्जे कर लिए। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए उन्होंने ये तरामीम करके घरों की तादाद कम कर दी। तो डीजी पंजाब कच्ची आबादी एक दफ़ा मेरे साथ मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे साथ सवाल किया कि जिताला साहब ये बताएं कि अगर एक घर में 4 भाई बैठे हुए हैं गांव में और चारे उठ के बाहर जाकर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें और 4 घर बना के कच्ची आबादी बना लें तो क्या हो सकता, ये ठीक है? मैंने कहा जी हमने तो इसके ख़िलाफ़ प्रेस दी हुई है, लेटर लिखे हुए हैं कि हमें ये कबूल नहीं है, हम 40 घरों से कम मानते ही नहीं हैं कच्ची आबादी की। लेकिन अब उन्होंने एक समरी बना के वज़ीर आला पंजाब को भेजी है, वो तरामीम जितने भी हैं उसमें वो कर गए हैं कि मार्केट रेट कर गए हैं। जो कच्ची आबादी के रेट थे ना 172 रुपये मरला, 1000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेज डेवलपमेंट अथॉरिटियों में, 500 रुपये डेवलपमेंट चार्जेज जो है ना वो टाउन तहसील लेवल पे लिया जाता था, वो उन्होंने ख़त्म करके मार्केट रेट DC रेट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो सर्वे, तो एक सरबराह जो घर का था उसके नाम सर्वे था, सर्वे लिस्टों में जब सर्वे हुआ तो जब रजिस्ट्री होने लगी तो वो उन्होंने ये तरमीम कर दी कि ये बीवी अगर 1 है या 2 है उनको भी बराबर का हिस्सा दो। अब सर्वे तो हुआ सरबराह के नाम, तो वो सर्वे रजिस्ट्री हो नहीं सकती उनकी, तो उन्होंने घरों में झगड़े पैदा हो गए। अब बीवी कहती मेरा भी हिस्सा बन गया। अब झगड़ा ये हो गया कि अगर वो उसके बीवी के नाम वो रजिस्ट्री करवा देते आदि, तो वो बीवी तो लड़ेगी कि मैं भी मालिक हूँ। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो के वो उसको तलाक दे देता है बीवी को, तो वो तो कहेगी कि आधे मालिक तो मैं हो गई हूँ, इसलिए घरों में लड़ाई झगड़े भी पैदा हो गए। ये बड़ा मसला पैदा हो गया हमारे। जी जिताला साहब, आपकी फेडरेशन जो है वो पंजाब के कितने अजला में काम कर रही है? पंजाब के तकरीबन 39-40 अजला हैं और 9 डिवीज़न हैं। और 9 डिवीज़न के नीचे जितने भी अजला आते हैं ना, वो तहसील लेवल पे हमारी पहले तो कच्ची आबादी में तंजीम होती है, फिर तहसील लेवल पे उनका होता है रब्ता, फिर ज़िले लेवल पे तहसीलों का होता है, और ज़िलों का जो है वो डिवीज़न में होता है, और डिवीज़न का रब्ता हमारे साथ फेडरेशन में मरकज़ में होता है। इस तरह हमारी तंजीम होती है। तंजीम जो है ना ये वहाँ हमने ऐलान किया हुआ है, बल्कि सारे जितने दोस्त हमारे साथ काम करते हैं वो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। उनको एक ही नसीहत की हुई है कि किसी से फ़ंड नहीं लेना, आपने खुद अपनी जेब से खर्च करना है और कोई किसी से फ़ंड वगैरह नहीं लेना, क्योंकि लोग बदनाम कर देते हैं, और इसका अजर हमने अल्लाह ताला से लेना है। और इस बेस पे हमारी तंजीम जो है ना काम कर रही है और इंशाअल्लाह और काम करेगी। साहब, आपका कहना है कि परवेज़ इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में कच्ची आबादियों को जो है वो उनके हकूक़ का ख्याल रखा गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में कच्ची आबादियों पे जो है वो नाजायज़ कब्ज़े किए गए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फेडरेशन के सदर होने के नाते क्या अपील करेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मैं भी कह रहा हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड भी है और ये कच्ची आबादियों के लोग भी बताएंगे आपको कि परवेज़ इलाही के दौर में ज़्यादा दिलचस्पी जो उन्हें ली अब्दुल अलीम खान ने ली है। उन्होंने मेरे साथ मालकाना हकूक़ कर लिया, इसलिए हमने उसको कच्ची आबादियों को मसीहा का खिताब दिया था कि उन्होंने हमारे साथ कच्ची आबादियों के बहुत काम कराया, कच्ची आबादियों को मालकाना, और रेलवे की आबादियों के भी NOC उन्होंने लेके दिए। आज तक कभी रेलवे के टोटल 124 कच्ची आबादियाँ हैं, 121 आबादियाँ 121, और जिसमें से 49
49 कच्ची आबादियों के जो है ना NOC हासिल करने के बाद रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। बकाया 72 कच्ची आबादियाँ हमारी रहती हैं जो कि आज तक उनके NOC मुस्लिम लीग ले नहीं सकी और ये मालकाना उनको रेलवे को नहीं मिल सके। और 124 कच्ची आबादियाँ जो है ना वो हिंदू गाँव पे है, उसमें से 26 कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक मिल गए हैं और बकाया 98 कच्ची आबादियाँ बकाया रहती हैं। कंटोनमेंट बोर्ड की 35 कच्ची आबादियाँ उनके किसी को भी मालकाना हकूक नहीं मिले। मुस्लिम गाँव की 18 कच्ची आबादियाँ हैं, उनमें 4 कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक मिले हैं NOC मिलने के बाद। बकाया 14 कच्ची आबादियों को अभी तक मालकाना हकूक नहीं मिले। जी ताला साहब, आपकी तंजीम में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और किस जगह पे किस नाम से वो तंजीम जो है वो काम कर रही है? तंजीम तो फेडरेशन ऑफ कच्ची आबादी के नाम पे ही काम कर रहे हैं, वो हमारे मेंबर हैं, इसी लेवल पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है ना मरकज़ के, वो लाहौर को भी कंट्रोल करते हैं और पंजाब को भी करते हैं, वो सूफी अब्दुल मजीद खान साहब हैं। वो मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और लाहौर के भी हैं, इसीलिए लाहौर का और पंजाब का रब्ता वो रखते हैं। और हमारे जो इलेक्शन होते हैं कच्ची आबादियों के, उसमें चौधरी मोहम्मद अमीन है, वो चंडीगढ़ में भी सदर हैं। और कच्ची आबादियों के जितने भी इलेक्शन 10 साल के बाद होते हैं तो वही करवाते हैं। तो डिवीज़न लेवल पे और ज़िले लेवल पे जितने होते हैं ना इलेक्शन, वो चौधरी अमीन साहब कराते हैं। और हमारे सदर अपना रिविया गाँव से भी आए हुए हैं, उनका नाम है सैयद वाजिद हुसैन काज़मी साहब, वो सारे वहाँ की कच्ची आबादी को कंट्रोल करते हैं। इस तरह हमारे हाजी शौकत परवेज़ साहब रावलपिंडी डिवीज़न में है, मलिक बशीर साहब फैसलाबाद डिवीज़न में है। इसी तरह हमारे जो एक्टिव ज़्यादा हैं ये 2-4 आदमी हैं, बाकी भी काम करते हैं लेकिन इतने एक्टिव नहीं है। कच्ची आबादियों के वसाइल के हवाले से अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे, कोई मुतासरा शख्स, तो किस तरह आपसे रब्ता किया जा सकता है? वो मेरे साथ रब्ता इस तरह करते हैं कि उनको हमने ये तंबीह भी की हुई है कि आप बिल्कुल यहाँ नहीं आना, क्योंकि वहाँ कच्ची आबादियों में से आप चल कर आते हैं, आने का किराया, जाने का किराया, रहائश वगैरह, तो फिर मुझे भी मैं भी तंग होता हूँ और काम तो मैंने करा के देना होता है। तो वो मुझे टेलीफोन कर देते हैं या चिट्ठी डाल देते हैं, तो वो काम मैं उनका करा के इधर से मैं उनको बाई डाक या टेलीफोन पर बता देता हूँ। तो इस तरह हम कच्ची आबादियों को पूरे पंजाब का काम इस तरह हम करवाते हैं। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे। तो कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक देने के लिए और उनके मसाइल हल करवाने के लिए मौजूदा हुकूमत को क्या आप मुतालबा करेंगे? अब मुतालबा तो हमारा ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो तरामीम कर गई है और उसकी समरी DG पंजाब कच्ची आबादी ने बना के भेजी हुई है, वो समरी भी वो गलत भेजी हुई है, वो उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और जो तरामीम हम चाहते हैं, जो 23 मार्च 1985 कच्ची आबादी की पॉलिसी और एक्ट 1992 के मुताबिक कानून कच्ची आबादी को बना हुआ है, जिस पे तकरीबन 4,500 कच्ची आबादी को मालकाना को मिल चुके हैं, उसी बेस पे। और उसी बेस पे जो बकाया 914 कच्ची आबादियाँ हमारी रहती हैं, उनको भी उसी बेस पे मालकाना हकूक दिए जाएँ, जो 23 मार्च 1985 की पॉलिसी और एक्ट 1992 के मुताबिक कच्ची आबादी को मालकाना हकूक दिया है। तो बाकी जो मरकज़ की ज़मीन पे कच्ची आबादियाँ हैं, कंटोनमेंट बोर्ड है, रेलवे है, हिंदू काफ है, ये मरकज़ में आती हैं, ये फौरी तौर पे NOC जारी कराए जाए इनसे। और NOC जारी कराने के बाद DG पंजाब नोटिफिकेशन करता है, नोटिफिकेशन करने के बाद फिर उसका रकबा मुंतकिल होता है उस मुतल्लिका अथॉरिटी को या डेवलपमेंट अथॉरिटी को या ज़िले को या तहसील टाउन को, जो उनको मुंतकिल होता है। जब मुंतकिल होता है तो वो बालक होते हैं, फिर वो रजिस्ट्री देते हैं कच्ची आबादी के लोगों को।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गली गली में पंजाब फेडरेशन कच्ची आबादी के दीगर ओहदेदारान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो कच्ची आबादी के मसाइल के ऊपर रोशनी डालते हुए क्या कहते हैं। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे।